Okay, so let me tell which topic we have covered in the last lecture. The last lecture was practical, na? What did we have complete in the last lecture? चलो fast. Yes, fast. चलो क्या किया हमने last lecture में? Yes, student, please be fast. हाँ बताओ शाहजाद. एडिशन का प्रोग्राम किए थे और उसमें फॉर बटन. Okay, yes, okay. We had done the sorry, we had done the web application, okay, in the last lecture. That was practical. Okay, we had seen how to take the how to make the web application, okay, then how to create the different web forms in that web application, okay, then uh, we make this small application, okay, that application takes to input from the users, okay, and then additions program we had done in the last lecture, okay, वो हमने किया. Now you have the idea, yes, how to make the web application, how to switch between the different web forms, okay, that also we had covered. वो भी मैंने आपको दिखाया कि how to switch from one page to another page. What are the controls, okay, how to use that control, how to set the properties of that control, okay, all these things we had covered in the last lecture. Okay, ये सारी चीजें हम लोग ने practicals में किया. What is properties, how to set properties, okay, what are events, where the code should write, okay, or where is the code file, what is the design file, how to do design, okay, through the we can do the designing using even two ways. The first is directly design page using the controls, and second way is to using the HTML code. Okay, source code mein jaake you can also use the design. So all these things we had covered in the last lecture. Okay, and the students who were absent in the last lecture, please see the recorded video. Okay, it is very important because in that video I had shown you how to create web applications, how to take controls. Okay, toolbox में से controls कैसे लेना है, how to do designing, okay, simple designing हम लोगों ने किया था, how to set properties, ये सारी चीजें you should know, okay, as a basic आपको ये पता होना चाहिए because you are the subject in this semester Microsoft Visual Studio. Okay, console applications also we had done. Okay, console applications में programs हमने किया, same programs addition वगैरह console application में किया था, same programs we had done in the web application in the last lecture. Okay, so please उसको देखो, okay, and try to understand and do the practice at home. Practice is very important, students. Okay. The next topic we had started the last lecture, that was ASP.NET file types. Okay, ASP.NET file types. Okay, all these files are where we can see all these files, students. Or where we can see all these files. These are the types of files I already explained in the last lecture. ठीक है, कहाँ पे मिलेगा ये सारा files? Who will tell? Ends with .aspx file, .asx file, web config file. ये सारा files मैंने आपको कल दिखाया था. Okay, so where these files are? Yes, कौन बताएगा ये? शाहजाद. Yes, fast. कीर्ति, शाहजाद. कृतिका, नशरा. All the students जिसको आंसर पता है please tell. All are the types of file. .aspx means this file is created when we select the web forms. Okay, web forms जब हम लोग select करते designing page है this extension, and with .asx file, controls file. ठीक है, see in the web application we have made this application in the last lecture. Recent projects में you will find your recent applications जो आपने create किया है Microsoft Visual Studio में, that all are comes here. Okay, recent projects में you can find all these applications. So we have created web application in the last lecture में हमने ये create किया था. Okay, उसको open होने दो. Yes, चलो बताओ मुझे कहाँ पे मिलेगा ये सारा files? ये सारा files कहाँ पे मिलेगा? ASP.NET फाइल टाइप्स जो है .aspx, .asx, कहाँ पे मिलेगा ये सारा फाइल्स? कहाँ पे स्टोर होता है? Yes.
ये स्टूडेंट्स चलो बताओ, इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर कहाँ पे मिलेगा? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यू विल गेट ऑल दीज फाइल्स, जो भी फाइल्स विच द फाइल्स यू हैव add in your application, all files store in the solution explorer. कहाँ पे store होगा? वो solution explorer में store होगा, ठीक है? wait .net क्या मेरा wait okay, solution explorer में you will find all these files. .aspx मतलब designing file, controls files, okay, reusability of design. If you are doing the reusability of design, कोई डिजाइन हम लोग रीयूज करे, एक बार उसको बना के रख दिया तो कंट्रोल फाइल्स जनरेट. वेब कॉन्फ़िगरेशन फाइल, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर एप्लीकेशंस में सॉरी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ योर फाइल विल बी स्टोर इन web.config फाइल. ये फाइल भी मैंने आपको दिखाया था. global.aspx फाइल, ओके, global.aspx फाइल मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स, ग्लोबल मेथड्स, एप्लीकेशन जो है आपके एप्लीकेशंस में, that you can store in the global .aspx file. Okay, you should know the use of all these files. I will ask in the MCQ question, MCQ exam. Okay, कि कौन सा फाइल का यूज क्या है? ASPX मतलब क्या? What is the meaning of ASPX? Okay, what is the web.config? All these things you should know. आपको पता होना चाहिए, तो दिस इज अ थियरी कंसेप्ट है, ठीक है? मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया कि वह ये फाइल कहाँ पे स्टोर होता है. ओके, एंड विद .cs मतलब क्या? कोडिंग, कोड बिहाइंड फाइल्स. कोडिंग फाइल जो है .net में, कल इन द यस्टरडेज लेक्चर वी हैड डन द कोडिंग ऑफ द एडिशन ऑफ टू नंबर्स. तो वो जो एडिशन ऑफ टू नंबर्स का कोडिंग हमने कहाँ पे किया था? .cs फाइल में. ओके, कहाँ पे किया था? .cs फाइल में. Cascading, if you are using the style sheet, if you are applying the style sheet in your applications, so CSS file will generated. Okay, okay. Now next is ASP.NET application directories. Next जो है that is ASP.NET application directories. ठीक है, जैसे files, ये all the files are available in the solution explorer में available is same. All the application directories, folders, okay, folders are also available in the solution explorer में होगा, ठीक है? Application directories मतलब folders. What is the meaning of directories? मतलब folders, by default folders, or whatever folder you will make in your application, उसको क्या बोलते हैं? Directories. Every web application should have a well-planned directory structure. Okay, for example, you will probably want to store images in a separate folder from where you store your web pages, or you might want to put public ASP.NET pages in one folder and restricted ones in another, so you can apply different security settings based on directory. So in short इन्होंने क्या बताया? तो folder, if you want to make folder for images के लिए folder बनाना है, या तो admin model के लिए एक folder बनाना है, तो यूजर मॉडल के लिए फोल्डर बनाना है, ठीक है? तो उसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन डायरेक्टरी. फोल्डर्स अरेंज करने के लिए योर डेटा जो है उसको अरेंज करने के लिए यू विल मेक दी फोल्डर्स. ओके, एंड ऑल दी फोल्डर्स एंड फाइल्स आपको कहाँ पे मिलेगा? इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में. सी दिस इज अ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो. दिस इज अ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, ठीक है? स्टाइल शीट देखो, .css फाइल आपको कहाँ पे मिल रहा है? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में. .aspx एक्सटेंशन वाला फाइल्स मतलब डिजाइनिंग वाला फाइल, वो भी कहाँ पे है? इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में. कोड फाइल, एड aspx इज अ डिजाइन पेज, उसका कोडिंग पेज क्या है? .cs एक्सटेंशन, ठीक है? .cs एक्सटेंशन मतलब क्या? कोडिंग. व्हेन आई विल क्लिक ऑन दिस फाइल द कोडिंग पेज विल बी ओपन, ठीक है? तो वो भी कहाँ पे मिल रहा है? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर. दिस इज कोडिंग फाइल, हमने कल कोड किया था ना, ओके? ये हमने कल डिजाइनिंग किया था. ओके, दिस इज डिजाइनिंग. Okay, this is designing. We had done the yesterday's lectures. Okay, ये डिजाइनिंग है, उसका कोड फाइल डिजाइनिंग का एक्सटेंशन .aspx, कोड पेज का एक्सटेंशन .cs, and all these files are available in Solution Explorer. Okay, जैसे फाइल्स अवेलेबल है, ये देखो web.config कॉन्फ़िगरेशन वाला फाइल, ठीक है? मास्टर फाइल, व्हेन यू विल यूज द मास्टर पेज, हेडर फुटर सब सेम रखना इन ऑल द वेबसाइट. जो क्या प्रीफर करते हो इन ऑल द वेबसाइट, हेडर एंड फुटर आर सेम. ओके, हेडर फुटर सेम रहता है. साइड मेनू जो है दैट ऑल आर सेम, ओनली जो कंटेंट है बीच का वो कंटेंट चेंज होता है, ठीक है? तो वैसे आपको करना है. इफ यू वांट टू अप्लाई द सेम फॉर्मेटिंग टू होल योर एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, वेब पेजेस को, वेबसाइट्स को, तो यू कैन यूज द मास्टर पेज.
ओके वी विल लर्न द मास्टर पेज इन द यूनिट 4 फाइल, लास्ट में है मास्टर पेज। तो जब मास्टर पेज क्रिएट करते हैं तो उसका जो फाइल है वो भी स्टोर होगा इन द सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। क्लियर? तो अभी तक हमने .aspx यूज किया एंड .cs जो कोड वाला पेज है दैट वी हैव यूज। ओके नाउ फोल्डर्स, फाइल्स तो मैंने बताया कि which are the फाइल्स अवेलेबल है। ओके सेम जैसे फाइल्स अवेलेबल है वैसे फोल्डर्स, जो येलो में दिख रहा है ना दैट इज फोल्डर। अकाउंट इज अ फोल्डर। ओके अकाउंट इज अ फोल्डर जिसमें कौन से पेजेस है, पासवर्ड, पासवर्ड सक्सेस, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर, ऑल जो बना के ऑलरेडी बना के दिया है बाय डिफॉल्ट। ओके यू कैन यूज अथवा उसको डिलीट करके यू कैन मेक योर ओन फोल्डर। देन एप्लेट डेटा फोल्डर, दिस इज फॉर डेटाबेस। ये जो फोल्डर है ना वो डेटाबेस के लिए है। इफ यू वांट टू ऐड योर डेटा तो एप्लेट डेटा फोल्डर जो है वो आपको मिलेगा। एंड आपका जो डेटाबेस है वो काफी दिखेगा आपको सर्वर एक्सप्लोरर में। डेटाबेस कनेक्टिविटी वी विल लर्न, अभी इतना मत कंफ्यूज हो जाओगे, तो छोड़ दो। देन स्टाइल करके एक फोल्डर है, जो स्टाइल फोल्डर में स्टाइल शीट स्टोर किया हुआ है। स्क्रिप्ट करके वन फोल्डर है, ठीक है, जिसमें जावास्क्रिप्ट वगैरह है तो स्क्रिप्ट विल बी इन दिस फोल्डर। So all are the folders. Some folders are by default available, some folders we will create. जैसे some files already available है, some हम कोई files हमने create किया है, वैसे folders, some folders are available by default and some folders we will create. Okay, तो उसको क्या बोलते हैं, directories। उसको क्या बोलते हैं, directory। क्लियर? ओके तो फर्स्ट जो फोल्डर है, जो फर्स्ट फोल्डर है दैट इज एप्लेट ब्राउजर। ठीक है, ऐप ब्राउजर। अगर ये फोल्डर अवेलेबल है तो क्या कंटेन करेगा, कंटेन द ब्राउजर फाइल्स दैट ASP.NET यूज टू आइडेंटिफाई द ब्राउजर दैट आर यूजिंग योर एप्लीकेशन डेटा मैनेजमेंट कैपेबिलिटी। आपका जो .NET है वो कौन सा ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है, कौन सा ब्राउजर में आउटपुट रन होगा। ओके वेब एप्लीकेशन मतलब क्या, योर एप्लीकेशन विल बी रन इन द ब्राउजर। तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कौन से ब्राउजर में रन होगा, उसका इंफॉर्मेशन कौन से फोल्डर में स्टोर होगा, ऐप अंडरस्कोर ब्राउजर। ऐप एप्लीकेशन है, सॉरी एप्लेट नहीं एप्लीकेशन, ऐप अंडरस्कोर ब्राउजर दैट इज वन फोल्डर। ओके एक फोल्डर होता है कोई 2000 जो ASP.NET 4 इन शीशा 2010 है ना, उसमें ब्राउजर करके फोल्डर अवेलेबल है, इसमें नहीं दिया है उन लोगों ने बाय डिफॉल्ट। ओके उन्होंने बाय डिफॉल्ट फोल्डर नहीं दिया हुआ है। तो ये जो वर्जन है, अलग अलग वर्जन मार्केट में आते रहते हैं, ठीक है, तो एक वर्जन, हर एक वर्जन में कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स होता है। तो जो 2010 वाला वर्जन है एप्रेस, उसमें एप्लेट ब्राउजर फोल्डर वो अवेलेबल है। द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन कोड। Okay, what is application code folder? It contains the source code files that are dynamically compiled for use in your application. Okay, application code folder जो है, ठीक है, एप्लीकेशन कोड फोल्डर भी हमारे उसमें नहीं, एप्लीकेशन डेटा फोल्डर इज देयर इन अवर एप्लीकेशन। ठीक है, तो एप्लीकेशन कोड फोल्डर अगर है तो इट विल कंटेन्स द कोड फाइल्स दैट आर डायनेमिकली कंपाइल्ड फॉर यूज इन योर एप्लीकेशन। जो फाइल्स सोर्स कोड वाला जो फाइल्स है जिसमें हम लोग कोडिंग करते हैं, ठीक है, जो डायनेमिक फाइल्स है उसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर हुआ है, एप्लीकेशन कोड फोल्डर में। The next folder is application underscore global resources। ओके जो ग्लोबल रिसोर्सेज आप यूज करें अपने आपका जो यार एप्लीकेशन जो ग्लोबल एप्लीकेशन यूज कर रहा है उसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होगा, इन दिस फोल्डर में। ठीक है, ये जो बताया उन्होंने ASP.NET 4 इन C# 2010 का वर्जन के फोल्डर्स अवेलेबल वो बताया। ठीक है, हमारा जो वर्जन है दैट इज डिफरेंट वर्जन है, तो डिपेंड्स ऑन योर वर्जन, सम फोल्डर्स आर अवेलेबल है। ओके कोई फोल्डर्स होगा कोई नहीं होगा। The next folder is application underscore local resources। ओके लोकल रिसोर्सेज, अगर लोग यहाँ पे ग्लोबल रिसोर्सेज यूज करेगा तो उसका इंफॉर्मेशन ये फाइल में स्टोर होगा। इफ यू आर यूजिंग दी लोकल रिसोर्सेज तो उसका इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। अदरवाइज इफ यू विल ऐड लोकल रिसोर्सेज तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। इफ यू विल यूज ग्लोबल रिसोर्सेज तो ये फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा इन योर सर्वर एक्सप्लोरर में। एप्लीकेशन अंडरस्कोर वेब रेफरेंसेस, store references to web services if you are creating the web services in ASP.NET में। अगर आप वेब सर्विसेज क्रिएट करे हो, ठीक है, तो वेब रेफरेंसेस अगर आप ऐड करोगे तो उसका ये फोल्डर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। ऐप डेटा, ओके ऐप डेटा इफ यू आर यूजिंग दिस फोल्डर इज अवेलेबल इन योर, इसमें अवेलेबल है क्योंकि उन्होंने एक डेटाबेस लेके रखा है। ओके डेटा कनेक्शंस के लिए उन्होंने डेटाबेस के लिए एप्लेट डेटा जो फोल्डर बना के दिया है। तो व्हेन वी विल ऐड डेटाबेस, तो हमारा डेटाबेस ऐड करेंगे तो वो किसमें ऐड हो जाएगा, ऐप डेटा फोल्डर में। तो डेटाबेस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है
वो कहाँ पे स्टोर होगा, ऐप डेटा फोल्डर में। हाउ टू ऐड डेटाबेस, कैसे ऐड करना है, वैसे ही जैसे हम लोग वेब फॉर्म ऐड करते हैं। ओके, राइट क्लिक करो, ऐड न्यू आइटम, ऑल दिस फोल्डर्स ना, जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे वैसे वैसे आपको ये सारा जो फोल्डर है वो क्रिएट हो जाएगा। सी बिजनेस शॉप में डेटा में एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस में ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ, एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। आई एम टेकिंग एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। ठीक है, जस्ट लेके दिखा रही हूँ, ये हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में। तो ये हमको क्या पूछ रहा है, यू आर अटेम्प्टिंग टू ऐड स्पेशल फाइल डॉट एमडीएफ टू एन ASP.NET वेबसाइट। In general, to use this type of item in your site, you should place in applet data folder. Do you want to place the file in applet data folder? ओके, मतलब हम जो डेटाबेस ले रहे हैं ना, वो डेटाबेस कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एप्लेट डेटा फोल्डर में। द फोल्डर इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, तो हम जो भी डेटाबेस लेंगे, द डेटाबेस विल बी स्टोर्ड इन दिस फोल्डर, ऐप डेटा फोल्डर। आई विल क्लिक इन यस पे क्लिक करूंगी, तो इट विल स्टोर, जो मेरा डेटाबेस है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एप्लेट डेटा फोल्डर में। तो दिस फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर योर डेटाबेस। ओके, से यहाँ पे अभी ऐड हो जाएगा, वो प्रोसेस हो रहा है, इट इज इन प्रोसेसिंग। It will take some time. डेटाबेस ऐड कर रहा है वो हमने। अब इसके पहले व्हाट वी आर डूइंग, करे थे हम लोग माई एसक्यूएल अलग से सेक्शन में इंस्टॉल करके उसमें हम लोग कोडिंग वगैरह करते थे। ठीक है, इन द थर्ड सेमेस्टर में। ओके, इन द थर्ड सेमेस्टर में हम लोग ऐसे करते थे। बट नाउ डॉटनेट ने इनबिल्ट डेटाबेस प्रोवाइड किया है, तो आपको एक्सटर्नल डेटाबेस को कनेक्टिविटी करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इफ यू आर मेकिंग रजिस्ट्रेशन पेज इन योर एप्लीकेशन, तो आप रजिस्ट्रेशन पेज जो बनाओ उसका डेटा यही डेटाबेस में स्टोर करवा देना। अगर आप प्रोजेक्ट इसमें करोगे तो फिर वो इजी हो जाएगा। तो आपको एक्सटर्नल कनेक्टिविटी करने की जरूरत नहीं। इंटरनल कनेक्टिविटी सिलेबस में भी है, और मैं भी आपको दिखाऊंगी हाउ टू कनेक्ट द डेटाबेस विथ योर एप्लीकेशंस के साथ। ओके, ठीक है, चलिए टाइम ले रहा है थोड़ा सा, तब तक हम लोग थोड़ा देख लेते हैं नेक्स्ट। ओके, एप्लेट डेटा फोल्डर clear. The next folder is applet theme folder. Okay, next folder is applet theme. If you are using the theme, ये जो बुक्स चैप्टर जो दिया है ना, दैट कौन सा दिया हुआ है, मैंने आपको बुक दिया हुआ है ASP.NET का, टू बुक्स आई एम गिविंग टू यू। ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल वाला बुक है वो नहीं, जो दूसरा बुक है ना उसमें ये पेज नंबर है। ठीक है, उसमें से मैंने ये नोट्स बनाया हुआ है, रेफरेंस बुक है थियरी के लिए। applet theme folders, this folders store the themes. ओके, अगर आप थीम्स अप्लाई करो, थीम्स मतलब क्या, अलग अलग डिजाइनिंग। ओके, थीम्स अवेलेबल होता है। इफ यू आर यूजिंग दी थीम्स, अगर आप थीम्स आपके सिस्टम में ऐड करोगे, आप एप्लीकेशन में थीम्स ऐड करोगे, थीम मतलब क्या, डिजाइनिंग अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल रहते हैं, और रेडीमेड टेम्पलेट्स, रेडीमेड थीम्स अवेलेबल है कि जो आप आपके वेबसाइट में डिजाइनिंग के लिए रखोगे। ओके, तो वो थीम्स अगर आप यूज करो तो वो थीम्स कहाँ पे स्टोर होगा, एप्लेट थीम्स फोल्डर में। कहाँ पे स्टोर होगा, एप्लेट थीम्स फोल्डर में। द नेक्स्ट फोल्डर इज बीन फोल्डर। तो बीन फोल्डर क्या कंटेन करता है, ऑल DLL फाइल्स, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरीज, okay, that the ASP.NET Web application use contain all the compiled .NET components. Okay, bin folder क्या करेगा, contain all the compiled जो भी components you are using your application, उसका information कहाँ पे store होगा, bin folder में store होगा। एक मिनट यहाँ पे भी ओके, तो ये फोल्डर्स जो है, जैसे जैसे यू विल यूज ऑल दिस कंपोनेंट्स एप्लीकेशन, सॉरी फीचर्स यूज करोगे ना, उसके हिसाब से यहाँ पे फोल्डर्स ऐड होता जाएगा। टाइम आउट हो गया, वेट अगेन आई एम टेकिंग। तो व्हाट इज अ फोल्डर, फोल्डर मतलब क्या, कि इन द फोल्डर यू विल स्टोर योर डेटा। ठीक है, आप अपना डेटा कहाँ पे स्टोर करोगे, फोल्डर्स में स्टोर करोगे। ये जो फोल्डर्स मैंने बताया वो बाय डिफॉल्ट है। अगर आप थीम अप्लाई करो इन योर सिस्टम में, तो थीम का फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। अब स्टाइल शीट यूज करो, ऐड न्यू आइटम जाके यू विल सिलेक्ट द स्टाइल शीट, ऑटोमेटिक स्टाइल का फोल्डर ऐड हो जाएगा। तो उन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी स्टाइल शीट दिया हुआ है डिफॉल्ट पेज में, तो ऑटोमेटिकली वो अप्लाई यहाँ पे क्रिएट हो गया फोल्डर। तो जैसे जैसे आप फीचर्स अप्लाई करोगे इन योर सिस्टम में, तो फोल्डर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। प्लस यू कैन ऑल्सो क्रिएट योर ओन फोल्डर भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करना है, राइट क्लिक करके आपको ऐड न्यू आइटम में जाके फोल्डर, ऐड न्यू फोल्डर बनाना है। वेट दिखाते हैं, वेट
server explorer ठीक है। तो फोल्डर्स का नेम ये होने दो, मैं आपको दिखाती हूँ इसके होने के बाद। What you should remember in this topics folder names and file, ठीक है। कुछ तो कनेक्शन विल बी क्लोज दिखा रहा है, दिखा जब हम लोग करेंगे ना ये मैं आपको दिखाऊंगी। चलो जाने दो, डेटाबेस का वी विल लर्न इन द यूनिट 5। ओके, आपको न्यू फोल्डर बनाना, यू कैन ऐड द फोल्डर, ऐड न्यू फोल्डर, सी न्यू फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने न्यू फोल्डर बनाया, जो भी नेम आपको देना है यू कैन गिव द नेम। ओके, तो मैंने फोल्डर को दे दिया एडमिन नेम। क्या नेम दे दिया फोल्डर को? एडमिन करके एक फोल्डर मैंने बनाया। which folder I am making? Admin folder, ठीक है। Now if I want to create my admin pages in this folder, तो मैं क्या करूंगी? just add में जाके new item में जाके again I will take the web form, general में जाके web form, उसमें एडमिन का जो भी फॉर्म आपको एडमिन फॉर्म रखना है, एडमिन कैन ऑथोराइज या फिर जो भी आपको पेज बनाना है, तो यू कैन मेक द पेज। ऑथोराइज करके एक पेज बनाया है, ठीक है, डॉट एस। नाउ माय फोल्डर जो पेज है वो पेज कहाँ पे ऐड हो गया? एडमिन फोल्डर में। ओके, तो सिंपली व्हाट इज द यूज ऑफ फोल्डर? फोल्डर का यूज क्या है? यू कैन अरेंज योर फाइल्स। ओके, .NET application some folders are default आता है, some folders you can create, okay, according to your requirements। तो सी यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर मैंने अपना एक फोल्डर बनाया एडमिन करके। तो इन दिस फोल्डर में मैं अपना सारे एडमिन के जो पेजेस है, आपके आप जो भी एप्लीकेशंस बनाओगे, जो भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे, उसमें 2 मॉड्यूल्स होगा। वन मॉड्यूल इज एडमिन एंड अनदर इज यूजर्स। एडमिन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल आप वेबसाइट, शॉपिंग वेबसाइट, इफ यू आर मेकिंग द शॉपिंग वेबसाइट, तो शॉपिंग वेबसाइट में एडमिन का क्या काम होगा? तो इन द शॉपिंग वेबसाइट में एडमिन क्या करेगा? व्हाट इज द पार्ट ऑफ एडमिन? तो एडमिन जो है, एडमिन विल ऐड दी आपका प्रोडक्ट्स ऐड करेगा, ठीक है। देन रजिस्ट्रेशन पेज एडमिन बनाएगा, ठीक है। देन कस्टमर को एडमिन हैंडल करेगा, कार्ड पेज जो है वो एडमिन हैंडल करेगा। तो जो पेजेस, जो काम एडमिन करा है वो आप कहाँ पे ऐड करोगे? सारे पेजेस एडमिन फोल्डर में। ओके, एंड कस्टमर, कस्टमर क्या कर पाएगा? लॉगिन कर पाएगा, व्यू कर पाएगा, परचेस कर पाएगा। तो ऑल दिस पेजेस आप कौन से फोल्डर में डालोगे? यूजर के फोल्डर में डालोगे, ठीक है। तो वैसे अगर आपको आपके पेजेस अरेंज करना है तो यू कैन अरेंज यूजिंग दी फोल्डर्स इन दी ASP.NET। ओके, तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में यू कैन मेक दी फोल्डर, आप सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में फोल्डर बना सकते हो। एंड फाइल्स एंड फोल्डर्स, ऑल दी फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑफ योर एप्लीकेशन कहाँ पे स्टोर होगा? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो में। इन द लास्ट लेक्चर हम लोग ने लॉगिन पेज बनाया, रजिस्ट्रेशन पेज बनाया, ऐड पेज बनाया। तो ये सारे पेजेस कहाँ पे अवेलेबल है? वेब एप्लीकेशन में, सॉरी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में। Clear? So in this topic you should remember the folders name and files name. Clear? Yes or no? समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, मुझे आपका समझ में नहीं आता आपके क्लास में, आप रिस्पॉन्स नहीं करते हो। यस मैम के नो मैम, प्लीज रिपीट मैम, कुछ नहीं बोलते आप। यस मैम। बोलो मैम सेटअप। हाँ, सेटअप देती हूँ। एक्चुअली मैं भूल गई, अभी मुझे नसरा का मेल आया तो मैं सेटअप देती हूँ। ये देखो मैंने ओपन करके ही रखा है मेल, ठीक है। आई विल सेंड, अभी आज लेक्चर के बाद सेंड करती हूँ आपको। ओके मैम। यस, ये टॉपिक में कोई डाउट है किसी को? ASP.NEट फाइल टाइप्स एंड ASP.NEट एप्लीकेशन डायरेक्टरीज, मतलब फोल्डर्स टाइप, फाइल के टाइप्स एंड फोल्डर टाइप्स। यू शुड नो द नेम एंड उसका मीनिंग, ठीक है। आई विल आस्क इन द MCQ एग्जाम में, मैं पूछूंगी ओके व्हाट इज द यूज ऑफ एप्लेट थीम, व्हाट इज यूज ऑफ एप्लेट डेटा। जब हम लोग डेटाबेस यूज करेंगे तो आपको मैं डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज एप्लेट डेटा फोल्डर, कैसे स्टोर होता है। जब हम लोग थीम सप्लाई करेंगे हमारे सिस्टम एप्लीकेशन में, तो थीम का फोल्डर कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, ये आपको याद रखना है। आई विल सेंड ऑल दिस फाइल्स, ओके, गूगल क्लासरूम में मैं आपको सेंड कर दूंगी, आपको उसको पढ़ना है। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है दैट इज directives. Okay, page directives we have already learned. Okay,
पेज डायरेक्टिव वी हैव ऑलरेडी लर्न। ओके, हमने पेज डायरेक्टिव जो है, फॉर एग्जांपल सोर्स की डिजाइनिंग में सोर्स, दिस इज अ पेज डायरेक्टिव। तो पेज डायरेक्टिव जो है ना, इट विल गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ योर पेज। ठीक है, आपका पेज का जो इंफॉर्मेशन है ना, कि पेज में लैंग्वेज कौन सा यूज कर रहे हैं, इवेंट यूज कर रहे हैं कि नहीं, कोड बिहाइंड फाइल, व्हाट इज द नेम ऑफ कोड बिहाइंड फाइल, कौन सा एप्लीकेशन में हम लोग जिस पेज वी आर क्रिएटिंग, ऑल इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगा पेज डायरेक्टिव। दिस इज पेज डायरेक्टिव। ओके, तो सेम और भी डायरेक्टरीज है, डॉटनेट में और भी डायरेक्टरीज है। तो डायरेक्टरीज गिव क्या करता है, डायरेक्टरीज गिव द इंफॉर्मेशन। ओके, डायरेक्टरीज गिव द इंफॉर्मेशन। Basically, page directives are commands. These commands are used by compiler when the page is compiled. How to use the directives in ASP.NET? It is not difficult to add page directive in ASP.NET page. It is simple to add directives to ASP.NET page. कैसे create करना है वो हमको बताया है। ठीक है, तो जो पेज डायरेक्टिव है वो तो ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आता है, सो वी नीड नॉट टू क्रिएट दिस वेब ये डायरेक्टिव। द सेकंड डायरेक्टिव, बहुत सारे डायरेक्टिव्स अवेलेबल हैं। ओके, यू कैन पुट मोर देन वन एट्रीब्यूट इन सिंगल डायरेक्टरीज। आप एक डायरेक्टरी में ज्यादा एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हो। और पेज डायरेक्टिव तो बाय डिफॉल्ट आता ही है। ठीक है, दिस इज बाय डिफॉल्ट कम्स व्हेन वी जनरेट आवर वेब एप्लीकेशन। अनदर जो डायरेक्टिव्स है वो भी अवेलेबल है। मास्टर डायरेक्टिव इज देयर, कंट्रोल डायरेक्टिव, इंपोर्ट, इंप्लीमेंट्स, रजिस्टर, असेंबली, मास्टर टाइप, आउटपुट टाइप, प्रीवियस पेज टाइप, रेफरेंस टाइप, ऑल आर दी डायरेक्टिव्स। मतलब ये जो डायरेक्टिव्स है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करा है। जैसे पेज डायरेक्टिव है, दिस इज अ पेज डायरेक्टिव, ये आपका पेज डायरेक्टिव है, ये जो पेज का इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है। ओके, ये डायरेक्टिव क्या कर रहा है, पेज का इंफॉर्मेशन हमको वैसे हमको रिटर्न कर रहा है। तो सेम वैसे ही मास्टर डायरेक्टिव जो है, ठीक है, तो मास्टर डायरेक्टिव विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट योर मास्टर पेज। ओके, आप जो मास्टर पेज ऐड करोगे, व्हेन यू ऐड द मास्टर पेज, तो वो आपको बताएगा मास्टर पेज जो है वो कौन से लैंग्वेज में यू आर यूजिंग, इवेंट यूज करे हो कि नहीं, वो मास्टर पेज होगा, एंड कहाँ से इनहेरिट। ओके, पेज डायरेक्टिव यू नो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जब व्हेन यू विल ऐड द मास्टर पेज, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके, कंट्रोल, व्हेन यू विल यूज द कंट्रोल, यूजर कंट्रोल्स, मतलब रेडीमेड जो डिजाइनिंग, मतलब एक बार बना के रख दिया आप उसको बार बार यू कैन यूज दैट डिजाइनिंग। ठीक है, वो यूजर कंट्रोल हम लोग यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जो डायरेक्टिव है दैट विल बी क्रिएटेड इन आवर सोर्स कोड। ठीक है, सोर्स कोड में यहाँ पे ऑटोमेटिकली डायरेक्टिव क्रिएट हो जाएगा। इंपोर्ट करके डायरेक्टिव है। ओके, इंपोर्ट वेब कंट्रोल वर्जन। Okay, import. What is the meaning of import? As you know, you need to define namespaces on CS class before using C# or VB class. So the import directory imports the namespace. Okay, if you are using the namespace, what is the namespace? Collection of the classes you can say, or it is used to arrange the different classes. If you are using the namespace, ठीक है, आप namespace use करो तो import जो name जो है directory, it will be generated, वो generate होगा ऑटोमेटिकली। ये सारे जो नेम्स डायरेक्टिव्स एंड ऑल आर ऑटोमेटिकली जनरेटेड। ठीक है, ये सारा ऑटोमेटिक जनरेट होता है। अगर हमने असेंबली यूज किया तो असेंबली का ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स, इफ वी आर यूजिंग दी इंटरफेस हम लोग यूज करें तो ऑटोमेटिकली ये जो डायरेक्टिव है वो क्रिएट हो जाएगा। ओके, रजिस्टर, when you create a user control and you drag that user control on your page, जब हम लोग यूजर कंट्रोल क्रिएट करेंगे, ओके, मतलब डिजाइनिंग के लिए फंक्शन क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फाइल जो है वो जो डायरेक्टिव ऐड हो जाएगा। असेंबली, ओके, असेंबली डायरेक्टिव अटैच असेंबली टू द पेज। ओके, जो असेंबली आपका होगा वो उसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सारे है, ठीक है, डायरेक्टिव्स, ये डायरेक्टिव्स व्हेन यू विल कोई फंक्शन यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके सोर्स कोड में जनरेट हो जाएगा। तो आपको भी लगेगा मैम ये तो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, आप हमको क्यों एक्सप्लेन करो, बट एज अ टेक्निकल पर्सन वी नो ऑल दी थिंग्स, हमको पता होना चाहिए। वो बोले ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है, बट हमको पता होना चाहिए और कौन से डायरेक्टरीज अवेलेबल, डायरेक्टिव्स अवेलेबल है। एक तो ये पेज डायरेक्टिव मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये ऑटोमेटिकली आता है। जैसे हम लोग मास्टर पेज क्रिएट करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली मास्टर पेज का जो डायरेक्टिव है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ओके, ये
तो यहाँ पे सी, ये हमने ये पेज में, डिफॉल्ट पेज में इन लोगों ने मास्टर पेज भी यूज किया है, तो मास्टर पेज का जो डिटेल है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, आपको मास्टर पेज का दिखाती हूँ मैं। दिस इज अ मास्टर पेज का डायरेक्टिव। ओके, जब हम मास्टर पेज लेंगे ना, तो मास्टर पेज का जो डायरेक्टिव है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। डॉटनेट में बहुत सारा हमको फैसिलिटी प्रोवाइड किया है, बहुत कम काम करना पड़ता है हमको, डॉटनेट बहुत कम चीज करनी पड़ती है, ऑल थिंग्स ऑलरेडी अवेलेबल है, रेडीमेड अवेलेबल है, ओनली हमको उसको यूज ही करना है। बट सब्जेक्ट है, हमको टॉपिक दिया हुआ है, तो वी हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। ऐसे नहीं है कि हमको नहीं करना है, तो हमको नहीं पता करना है, ऐसे नहीं है। ओके, एवरीथिंग वी शुड नो अबाउट द डॉटनेट फ्रेमवर्क। हमको कोडिंग तो हम लोग करेंगे, कंट्रोल्स हम लोग पढ़ेंगे, बट जो बेसिक थिंग्स जो है वेब फॉर्म रिलेटेड वगैरह, अगर आप कंपनी में जाओगे, इंटरव्यू में पूछ लिया ये सब क्या है, तो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए। ये डायरेक्टिव्स है। हम मास्टर पेज क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली मास्टर पेज में ये डायरेक्टली आ गया। सी मास्टर पेज, हाउ टू टेक मास्टर पेज, दैट आई विल टेल यू। बट जब मास्टर पेज हम लोग लेते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उसका इंफॉर्मेशन उसके सोर्स फाइल में ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। तो ये सारा क्या है आपका डायरेक्टिव्स। ओके, कंट्रोल्स यूज करोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इंपोर्ट नेम स्पेस इफ यू आर यूजिंग, ऑटोमेटिकली नेम स्पेस के लिए ये डायरेक्टिव्स क्रिएट हो जाएगा। इंप्लीमेंट, इफ यू आर इंप्लीमेंट्स, इंटरफेस इंप्लीमेंट्स करो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो whichever functionalities you will use, तो उसके रिलेटेड जो भी ये डायरेक्टिव्स है दैट विल ऑटोमेटिकली एडेड, बट आपको पता होना चाहिए। ओके, तो दिस इज डायरेक्टिव। पेज डायरेक्टिव तो है, एंड ये बाकी भी सारे डायरेक्टिव्स ही है। पेज डायरेक्टिव, मास्टर डायरेक्टिव, कंट्रोल डायरेक्टिव, ऑल आर दी डायरेक्टिव्स। क्लियर? तो ये है। यस, प्लीज रिजॉइन करो स्टूडेंट्स। ओके, रिजॉइन। Okay. The next topic is, the important topic is life cycle. ASP.NET application life cycle. It is important concept है, ठीक है? What is the next question? ASP.NET application life cycle. What is the meaning of life cycle? What is the meaning of life cycle? Life cycle का meaning क्या होता है? अभी तक आप लोगों ने बहुत सारा लाइफ साइकिल स्टडी किया होगा, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए। व्हाट इज द लाइफ साइकिल? चलो बताओ, रिजॉइन, रिजॉइन करो। ओके, ये लेक्चर खत्म होगा, रिजॉइन करो। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ साइकिल स्टूडेंट? प्लीज, ये बेसिक क्वेश्चंस है, यू शुड नो द आंसर एंड यू हैव टू गिव द आंसर इन द लेक्चर, अदरवाइज मैं स्किप कर दूंगी टॉपिक। अभी जो एसवाई स्टूडेंट्स है, वो स्टूडेंट्स जैसे क्वेश्चन पूछा नहीं तुरंत आंसर देते हैं, एंड आप लोग को एक ही क्वेश्चन 10 टाइम्स पूछना पड़ता है तो भी आंसर देते नहीं हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ साइकिल? लाइफ साइकिल मतलब क्या? लाइफ साइकिल मतलब some steps which we are going to perform something. Okay, life cycle मतलब क्या? Some a series of steps you can say. Okay, are those steps? Okay, जैसे कि we had already learned the SDLC life cycle, software development life cycle, the steps, okay, which we are going to follow to make the software. वो हमारा SDLC life cycle था, जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए what steps we have to perform. तो सब वैसे ही, same वैसे ही we have the ASP.NET application life cycle. When the ASP.NET application is launched, there are series of steps which are carried out. When जब हम लोग एप्लीकेशन ओपन करते हैं, ठीक है, उसको रन करते हैं, तो when ओपन करते हैं, रन करते हैं, तो उसके बीच में जो प्रोसेस स्टेप्स फॉलो होता है, ठीक है। हमको तो क्या दिखता है, वी आर ओपनिंग हमारा वेबसाइट, राइटिंग सम कोड एंड रन किया, बट वो ओपन करना एंड आउटपुट आना, उसके बीच में स्टेप्स परफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स आर परफॉर्म। Okay, this series of steps make up the life cycle of application. This series of steps make up the life cycle of the applications. Okay.